is a most interesting story. Life Management Institute, Dr. Sunil Karpe. Can you order a fly to fly away? You don't have to be the most powerful man in the world. Just to bring forth your inner power is enough. It happened in the life of Khalifa Harun al-Rashid. He was sitting with his court jester Bolul, and he said, "Bolul, I am the most powerful man in the world. I am the Manrach with his infinite power, and whatever I want to do, I can do it. Their whole world obeys me. Can you find anything which is not under my order?" Bokul kept silent. Every time talented people are silent, then he said, "Sir, I can't think of any such things, but this fly has been disturbing me very much. I have tried. Basically, the small things also important in life. I have been trying to get rid of the sins long, but she seems to be adamant. Can you please order her not to be disturb me?" Harun al-Rashid said, "Are you fool, Bolul? How can I order the fly? Do you think she is going to listen to me?" Bolul said, "You have forgotten, sir, what you are saying. That is the whole world follows your order, and even this fly just in front of you are sitting in my head. I am trying to avoid it, and it goes through the landing again and again to my nose, and I have seen the landing on your nose also, sir. And you cannot order the small fly, and the whole world follows your order. You think again." Harun al-Rashid was speechless, but they understood the point. Everybody wants to become a richest man of the world. Everybody wants to be the most powerful man of the world. Everybody wants to be the most strong, beautiful, intelligent, famous in the world. Of course, it's not wrong. But much anesthetically is created. In that, the anesthetically you are the short of the continuous illness, disease, restlessness, fear, which you go on constantly trembling, and every moment there is the frustration waiting for you, because even a small things such a fly will show you the place and your right place. The real things is not to be the most powerful man in the world, but being forth your inner potential to be the what you are meant to your uniqueness. कहानी बहुत मजेदार है, आपको समझ में आई होगी। विषय इसीलिए मैं आपके सामने सबके सामने हिंदी में फिर से दोहराना चाहूं। कुछ मेरे मित्र कहते हैं कि सर आप इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषा में अगर हमें समझाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आमीन। मैं प्रयास तो उर्दू का भी करने वाला हूं, और मैं आप तो जानते हैं कि मैं कुछ संकल्प दोहराता हूं, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए सेवा में कटिबद्ध हूं। एक मक्खी को उड़ने का आदेश दे सकते हैं आप? खलीफा हारून अल-रशीद के जीवन की एक घटना है, सत्य घटने पर आधारित है। वह अपने दरबारी विदूषक बोलूल के साथ बैठा था। वो उससे बोला, "बोलूल, मैं संसार का सर्वशक्तिमान हूं। मैं ऐसा बादशाह हूं कि जिनकी सब शक्तियां अनंत है, और मैं जो चाहे कर सकता हूं। पूरा संसार मेरे आदेश से पालन करता है। क्या तुम ऐसी कोई चीज गिना सकते हो जो मेरे आदेश के अधीन ना हो?" बुलबुल कुछ समय चुप रहा, फिर बोला, "बादशाह सलामत। ऐसी तो कोई चीज मैं नहीं सोच सकता, लेकिन एक मक्खी ने मुझे बहुत देर से परेशान कर रखा है। कितनी देर से मैं इसे उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये बड़ी जिद्दी है। क्या आप कृपया इसे आदेश देंगे और इससे मुझे परेशान न करने का आदेश करें?" हारून बोला, "तुम क्या पागल हो गए हो? मक्खी को मैं कैसे आदेश दे सकता हूं? तुम्हें लगता है वो मेरी बात सुनेगी?" बुलबुल बोला, "बादशाह सलामत, क्या आप भूल गए हैं कि अभी अभी आपने क्या कह रहे थे कि पूरा संसार आपके आदेश का पालन करता है
और यहाँ आपके सामने एक मक्खी मेरे सिर पर बैठी है, मैं इसे उड़ाता हूँ और फिर से वो आकर मेरे नाक पर बैठ जाती है। मैं तो इससे नाक पर बैठे, सर पर बैठे तंग आ चुका हूँ। पूरा संसार आपके आदेश का पालन करता है, अभी अभी आपने कहा आप ये छोटी सी मक्खी को आदेश नहीं दे सकते। हारून अल रशीद चुप रहेगा, लेकिन उसकी बात समझ में आ गई। हर कोई संसार को सबसे धनी, सबसे शक्तिमान व्यक्ति होना चाहता है और सबसे आगे होने की इस दौड़ में ही सारे तनाव है। लेकिन तुम कितना ही आगे पहुंच जाओ, मक्खी जैसी एक छोटी सी चीज भी तुम्हें सारी तुम्हारी शक्ति का मूल्य मतलब दिखा देगी। अहंकार सबसे बड़ा भ्रम निराश है, इसीलिए कहते हैं ऐरावत रत्न थोरत्यास अंकुशाचा मार। क्योंकि और भी एक कहते हैं कि याद रखना, कभी जिंदगी में भूलना मत। अगर आपको अहंकार हो गया और किसी चीज को आप सर्वज्ञ मानने लगे तो याद रखना, छोटी चीज भी आपको जमीन पर लाने को नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूं कि अपनी क्षमताओं का विकास जरूर करें, लेकिन किसी की तरह बनने के लिए अपने शरीर को तकलीफ मत दीजिए। नहीं तो आपने सुना होगा, जिस आदमी ने, जिस डॉक्टर ने पूरे हिंदुस्तान के नामचीन लोगों का हार्ट अटैक की सर्जरी की, वो डॉक्टर नीतू मांड के अपनी खुद उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आपके सामने कहूं। जिस स्टीव जॉब्स ने अपनी एप्पल कंपनी को 2 बार खड़ा किया, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नामचीन कंपनी बनाई, वो कैंसर के सामने हार गया। इसीलिए मैं कहना चाहूं कि 99% शक्ति आपके पास होगी, लेकिन एक शक्ति भगवान के पास होती है। इसलिए नम्रता के साथ रहो, विनम्रता के साथ जियो और फिर अपनी जिंदगी में काबिल हो जाओ। यही मैं कहूं। धन्यवाद।